Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mahua. Now, today in this brief course, today is your lecture number 3. In the previous two lecture, we were discussed about some of the points regarding the rational numbers, and you also solved out the practice question 1 to 5. So 6 and 7 practice questions is remains. So at the last point, whatever we discussed about the rational points, how to plot rational numbers on the number lines, that we discussed here. And the second things, today we will learn about the rational numbers between two rational numbers. So let us move on it. Already we discussed one particular videos of this two how many rational numbers we find out from two rational numbers. So which rational numbers lies between -1 and 0. अब -1 and 0 के बीच में कितने rational numbers है? So this is very easy for that, because we have to put any numbers between that two, -1 by 5, -1 by 4, 3, 2, -1, whatever. So there are many more rational numbers between -1 and 0. -1 and 0 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं. आप अपने फिगर में भी देख सकते हैं और आपको पता भी है अब कि देर आर मेनी मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0. तो अब हम ऐसा करते हैं कि we are given here the one particular timetable, particular rational numbers -1 by 10 and -9 by 10. So which rational numbers lies between given two numbers? Let me plot these numbers on a number line first. -1 by 10 and -9 by 10. So it will be plot onto between the zeros and -1. तो -1 and -9. अब आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में 10 है, तो 0 और -1 के बीच में कितने पार्ट होने चाहिए जितने डिनोमिनेटर है. तो 0 और -1 के बीच में कितने प्लॉट होने चाहिए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So there are 10 different part between these two rational numbers, because of here given the denominator is 10. तो कितने नंबर है 0 और -1 के बीच में? हमें तो 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट वन starts from the 0. First one is -1, then -2, -3, -4, and up to the -9 we have to put. तो ये हुआ पूरा कितना नंबर ये टू रेशनल नंबर्स के बीच में है. सेकंड थिंग, -2 by 10 एंड -8 by 10, ये दोनों नंबर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि -1 by 10 और -9 by 10 के बीच में, यानी वो नंबर को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इनके बीच में कितने नंबर है वही हमें काउंट करने. सो देर आर मैनी मोर रेशनल नंबर्स ओवर हियर. तो ये हुआ आपका एक सॉल्यूशन, आपका एक रिकॉलिंग. नेक्स्ट वन, फाइंड रेशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 1 by 5 and 1 by 3. So how can we find the numbers between two rational numbers with different denominator? सेम डिनोमिनेटर थे तो हमने फाइंड कर लिया, अब डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो क्या करेंगे? So how to plot? So we can't plot 1 by 5 and 1 by 3 on the number line. They have different denominator. Then let's find the equivalent rational numbers of 1 by 5 and 1 by 3 with the same denominator. So by finding the LCM of 5 and 3, आपको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है, तब हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है. तो डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए हमें इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा. सो एलसीएम ऑफ 5 and 3, then we can convert 1 by 5 and 1 by 3 to rational numbers with the same denominator. So 5 and 3 का LCM होता है 50. सो 1 by 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका डिनोमिनेटर 15 आएगा, और 1 by 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका डिनोमिनेटर 15 आएगा. तो 13 by 15 and 5 by 15 both are the equivalent
of these numbers. So 13 by 15 and 5 by 15, अभी दोनों numbers कैसे हो गए, डिनोमिनेटर इसके सिमिलर हो गए, तब उसको प्लॉट कर सकते हैं. तो कैसे करें? लाइक 0 एंड 1 के बीच में 3 एंड 5, आप देख सकते हो कि 3 एंड 5 है. 3 एंड 5 के बीच में कितने नंबर से, तो 1/5 एंड 1/3 के बीच में कितने नंबर से, एक ही रेशनल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड हो रहा है, दैट इज 4/15. सो 4/15 lies between 1/5 and 1/3. So while find the numbers between two rational numbers with different denominator, we convert them to equivalent rational numbers with the same denominator. तो रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5. तो 3 और 4 के बीच में कौन से नंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर भी इक्वल ही है. तब हमें क्या करना है, बोथ रेशनल नंबर्स को हमें न्यूमरेटर आर सक्सेसिव नंबर्स. सो हमें क्या करना चाहिए, दैट टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 एंड 4/5. तो 3/5 का इक्विवेलेंट होता है, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6/10 एंड 8/10 आता है. So let us plot 3/5 and 4/5 on the number line like that way. It's very easy because of we have to find out the equivalent ratio 6/10 and 8/10. तो इसके बीच में एक नंबर होता है, वो होता है 7/10. So 7/10 lies between 3/5 and 4/5. So we can also multiplying the different number. यहाँ पे 2 ही नंबर से करना जरूरी नहीं, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो और भी रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो 3/5 एंड 4/5 के बीच में. जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/15 एंड 12/15 आया, तो उसके बीच में दो नंबर्स 10 एंड 11 आप देख सकते हो इसी नंबर्स में, क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी नंबर्स हम अलग अलग कर सकते हैं. तो ये हुआ आपका पोर्शन. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. So based on this two rational numbers, find out the one rational numbers between two rational numbers. Some practice questions I given that you have to solve at your home in today's homework. So in today's homework you have to solve like first one question. ये आज के होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, that is for find three rational numbers that lies between 1/4 and 2/3. कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 3. और किस में हमें फाइंड करना है, दोनों के बीच में, यानी 1/4 एंड 2/3 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है. इज इट क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज होमवर्क. फिर आपका टुडेज होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है टुडेज होमवर्क का. क्वेश्चन नंबर 2, विच इज ग्रेटर एमंग 1/5 एंड 4/5. 1/5 एंड 4/5 में विच वन इज ग्रेटर, ये आपको बताना है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज होमवर्क. So this is your homework question number 3, that is today's homework, that is question number 3. Solve here that which is greater among 2/3 and 3/4. फिर से मैं बोल रहा हूँ, आज का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने पहले क्वेश्चन 2 बताया 1 and 2, and this is the third one for solving here. And we will move for the further homework. So last one topics of today's study, that is operations on rational numbers. हम different operations rational numbers के ऊपर कैसे कर सकते हैं. मैंने अभी आपको 3 questions homework में बताए हैं. You can also rewind this video, you can also pause this video and write down the whole homework that I already given in front of you. So at the last of this today's brief course lecture number 3, that is operation on rational numbers.
अब आप बताओ कि यदि हमें ऐसा बताया गया कि यू हैव लर्न हाउ टू ऐड रेशनल नंबर्स इन क्लास 7 ऑलरेडी, so let us see if you can add two rational numbers on your own. How can we addition of the rational numbers? Solve the following questions like minus 7 by 3 plus minus 4 by 3. How can we use it? Minus 7 by 3 plus minus 4 by 3. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें पता है कि 7th क्लास में हम क्या करते थे कि 3 जो नीचे डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो हम न्यूमरेटर का सीधा एडिशन कर देते, तो -7 प्लस -4, मतलब इसका एडिशन तो ऐसे ही होगा ना, -7 -4, तो -7 -4 कितना होता है, दोनों के बीच में माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 + 4 कितना होता है 11. सो बट साइन विल बी माइनस, सो -11/3 इसका आंसर होना चाहिए, बराबर है. एंड दूसरे का जो आंसर है वो थोड़ा अलग होगा क्योंकि 7 + 4 है, तो -7 + 4 क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है 7 और 4 के बीच में, तो बचता है 3, बट कैसा बचेगा, -3 बचेगा, तो -3 डिवाइड विथ द 3, तो इसका आंसर 3 3 कट होता है तो -1, तो ये सेकंड का आंसर -1 आता है और फर्स्ट का आंसर -11/3 आता है. जस्ट वी चेक इट आउट. Do both the numbers have the same sign? Okay, so add their absolute value 7 + 4, use their common sign for the answer. So -7/3 plus -4/3, यहाँ पे जब मैंने ऐसे ही बताया आपको कि 7/3 plus 4/3 को आप एडिशन करेंगे तो आपका आंसर रहेगा -11/3. ये आपका आंसर सही हो गया. ओके, और सेकंड जो आपका था उसमें आपने क्या करना है, -7/3 plus 4/3, सेम साइन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को एंड यूज द साइन ऑफ द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द आंसर. अब जब दोनों में साइन इक्वल नहीं है तो हम दूसरी मेथड यूज करेंगे, जैसे हम 7th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, तो सब्ट्रैक्शन होगा. सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी साइन एब्सोल्यूट जो वैल्यू मिलेगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू में जो लार्जर है उसकी साइन रहेगी. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर -7/3 plus 4/3, दोनों की साइन सिमिलर नहीं है तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ. सब्ट्रैक्शन होने के बाद उसका सिंप्लीफिकेशन किया तो साइन आपकी -1 इंडिकेट्स हुआ, तो इसका आंसर हो गया -1. So addition of the rational numbers to both the numbers have the same sign. Yes or no? यदि yes करना है, आप दोनों ये रूल यदि याद नहीं है तो फिर से लिख लेना. आपको क्वेश्चन पूछना है कि दोनों नंबर से यदि सेम साइन के हैं, यदि आपका आंसर यस है तो यू फॉलो दिस प्रोसीजर, यदि आपका आंसर नो है देन यू फॉलो दिस प्रोसीजर. ये दोनों प्रोसीजर आप लिख लेना. That is very important for the addition of the rational numbers. Is it clear? So we will now learn how to subtract rational numbers. तो अभी addition के बाद हमारा होता है subtraction. So before we begin, let us recap the concept of the additive inverse of a number. अब आपको पता है कि 4/7 है, उसका additive inverse क्या होता है. Obviously 4/7 का additive inverse होता है -4/7. 4/7 and -4/7 are the opposite as their sum is 0. So therefore -4/7 is the additive inverse of the 4/7. So 4/7 का additive inverse होता है -4/7, तभी दोनों वैल्यू का आंसर आता है 0. तो हमें याद रखना है 4/7 का एडिटिव -4/7 और -4/7 का एडिटिव 4/7. So the additive inverse of a number is number that when added to a given number result is 0. एडिटिव इनवर्स का मतलब ही ऐसा होता है कि जब भी कोई भी नंबर्स का एडिटिव इनवर्स यदि इसमें ऐड करो तब उसका रिजल्ट 0 ही मिले,
तब उसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? आपको पता है कि 4/7 है, उसका एडिटिव इनवर्स -4/7 लिखा, तो एक 4/7 प्लस है और एक -4/7 है, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो ये चीज अच्छी तरह से आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर? सो दैट इज फॉर द एडिटिव इनवर्स हियर. So let us see the concept of the additive inverse to solve a subtraction of the problem. So solve the question here, -3/8 -2/8. So we have learned that subtracting an integer is the same as adding its additive inverse. So 3 minus 2 is the same as 3 plus -2, क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा? ऐसे. तो हमें क्या करना है? Similarly, -3/8 -2/8 can be written as -3/8 plus -2/8. ऐसे लिख देने से क्या होगा? Solve this. -3/8 -2/8. तो पहले हमें क्या करना है? Find the first step. Find the additive inverse of 2/8. 2/8 का additive inverse होता है -2/8. The second integer. Add the additive inverse to the first integer. अब फर्स्ट इंटीजर क्या है? -3/8 है, उसमें हम जो पहले स्टेप में मिला है -2/8 उसको यहाँ पे ऐड करेंगे सेकंड स्टेप में. सो -3/8 में क्या ऐड होगा? प्लस -2/8. सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द रूल्स ऑफ एडिशन. फिर बाद में हमें रूल्स ऑफ एडिशन से ही सॉल्व करना है. सो -3/8 plus 2/8, so we have to get -5/8. When both the rational number have the same sign, add the absolute values and use their sign. यदि दोनों की साइन इक्वल है तब हमें दोनों के बीच का एडिशन कर देना है और जो भी साइन है वो आगे लिख देनी है. बस वही रूल हमने अभी देखा. सो चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग्स. क्या आप सीखे? -3/4 -4/3 उसको आप कंसीडर करो तो इसका आंसर क्या आता है? -3/4 इंटू 3 इंटू 3. सो दैट्स वे वी हैव टू गेट द -25/12. So let us now recap the multiplication and division of the rational numbers. So calculate the following. अभी हमें ये कैलकुलेशन करना है. यहाँ से सब कुछ आज अपने होमवर्क में भी लिखना है. यहाँ पे मैं सॉल्यूशन तो दे ही रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है. तो सो 9/2 इंटू -7/4 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. कैसे करेंगे? 9 इंटू -7, 2 इंटू 4. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में मल्टीप्लिकेशन किया. Same way we have to got. So when the sign of two rational numbers are the same, the product is positive. When the sign of two rational numbers are different, इसमें जो यदि different आते हैं तब product is negative. आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग है तो आपका प्रोडक्ट आया नेगेटिव. यहाँ पे दोनों की साइन इक्वल है तो आपका प्रोडक्ट आया पॉजिटिव. तो ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन. सो सॉल्व द आंसर इन द फॉलोइंग. अब ये डिवीजन वाला पार्ट है, ये भी चीज आप अच्छी तरह से समझ लो कैसे डिवीजन करते. डिवाइडिंग ए रेशनल नंबर इज द सेम इज मल्टीप्लाइंग इट रेसिप्रोकल. मतलब 3/5 है तो डिवीजन है तो उसका रेसिप्रोकल कैसे होगा? डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम सेकंड स्टेप में. अब देखो तब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 3/5 मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो -4/3 है वो 3/-4 हो जाएगी. तो ऑलवेज डिवाइडिंग ए रेशनल नंबर इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग इट रेसिप्रोकल. जब हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही उसका परफॉर्मेंस हो जाता है जब वो डिवीजन में होता है. तो सिमिलर वे फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन आ गया तो आगे हमने मल्टीप्लिकेशन की मेथड सीख ली है, वैसे ही उसका आंसर होगा. आप यहाँ पे भी देख सकते हो -7/12 डिवाइड विथ -2/13. सो -2/13 का रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 13/-2. तो दैट्स व्हाई वी गॉट 84/24. दैट इज द आंसर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग्स. तो ये हुआ आपका
addition, subtraction, multiplication and division of different rational numbers. So I hope so that you understood well with using all the fundamentals of the rational numbers. So let us move on to the practice question already I given into the today's homework. So let us move on it. So let us move on this test of divisibility and laws of exponent. आपको सिर्फ ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन योर बुक. ये बुक में अब अच्छी तरह से लिख लेना, बिकॉज ऑफ इट विल आस्क इन टू द एग्जाम्स. ये ब्रीज कोर्स के बाद जब एग्ज़ाम रहेगी तब मैं ये सब चीज़ पूछूंगा. सो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी 2 से लेके 11 तक की मैंने पहले भी आपको होमवर्क में दिया था. वही चीज़ यदि आपने बुक्स में नहीं लिखी है, सो देन यू हैव टू राइट दिस थिंग्स. सो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी अप टू सेकेंड टू 11 ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू कवर. यू कैन ऑल्सो पोज द वीडियो. यदि वो रैपिड लग रहा है, फास्ट लग रहा है, तो you can also pause this video and you have to write. And second thing, laws of exponent. ये laws of exponent भी आप सब पूरे 6 लॉज आप अपना याद रखना है, तो ये चीज़ भी आपको लिख लेनी है. सो लॉज 1 2 3 4 5 and 6. okay, and now we are going for the practice question. तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने पहले लास्ट में ये चीज़ बताई थी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 3 4 ये सब क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं. ओके, यदि सॉल्व नहीं किए तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से 5 तक की प्रोसीजर मैंने अगले लेक्चर्स में भी आपको बताया था. तो ये होमवर्क पहले सेकंड लेक्चर्स में मैंने बता दिया है. प्रैक्टिस क्वेश्चन अप टू 5. ये 5 आपने ऑलरेडी लिख लिया है. आज आप जो करेंगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 से आप स्टार्ट करेंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 से. कहाँ से? 6. सो 6 से यू हैव टू स्टार्ट, क्योंकि हमने जो भी चीज़ सीखी है वो 6 आज 6 7 8 9 10 यहाँ तक आप करेंगे 6 to 10. ओके, यू कैन ऑल्सो सॉल्व द 11 ऑल्सो. सो 6 7 8 9 10 and 11 is also be doing in today's homework. आज के होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको बताई दे रहा है ना, 6 क्वेश्चंस अच्छी तरह से 6 से 11 तक. 6 to 11 6 to 11 आज के होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है. यदि आपको दिखता नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 फिर से मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह से ब्रॉडर सेंस में बताएंगे तो आपको दिखाई देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6 से 11 ये सभी क्वेश्चंस आज के होमवर्क में कंप्लीट करना है. इज इट क्लियर? तो हाउ मेनी क्वेश्चंस? आगे आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के 1 to 5 सॉल्व कर लिए हैं. अब 6 to 11 आज के होमवर्क में रहेगा. इज इट क्लियर? सो आई होप सो दैट यू हैव टू वर्क हार्ड at your home and you practice more on this bridge course. And end of the lecture today, we just say that stay at your home safely, and if you have any kinds of the doubt then you can ask me. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.